Look at what God says over here. This is something, this is a thus says the Lord moment. I tell you, when you're reading the Bible, the moment the Bible says the Lord, or God says, or this is the word of the Lord, or if you're reading something in the New Testament and it says Jesus says, these are things that immediately should get you to attention. और ये वचन अगर आप पढ़े हैं और ध्यान से अगर आपने सुना होगा, जब जब ऐसा पवित्र शास्त्र कहता है कि सेना का यहोवा ये कहता है, या परमेश्वर ये कह रहा है, या परमेश्वर ये कहने जा रहा है, या यीशु मसीह ये कहता है, तो ये वचनों को हमको खास कर ध्यान से सुनना है। This is what the verse says. This verse is telling all of God's people. It's talking about two specific things. It's talking about God's people. It's talking to God's people, all of God's people. That's one. And second, it's talking about the storehouse. These are the two things it's talking about. और ये वचन खासकर दो चीजों के बारे में बात कर रहा है। पहली चीज ये कि परमेश्वर के लोगों के बारे में बात कर रहा है, परमेश्वर के लोगों से बात कर रहा है जैसे हमने पढ़ा। और दूसरी चीज ये है जो भोजन वस्तु है, जो परमेश्वर के भवन के बारे में बात कर रहा है। So you are God's people. तो आप परमेश्वर के लोग हैं। And there is no other place, there is no other vicinity that fits into this definition of storehouse. What's the Bible talking about? Your bank? What's the Bible talking about? Your office? What is the storehouse? The storehouse is somewhere where you go to collect something, where you get your food. That's storehouse. So it's the church is the only place that fits into this description as the place where we go to get our spiritual food. और जिस वचन के मुताबिक यहाँ पर परमेश्वर का वचन किस चीज के बारे में बात कर रहा है, किसी घर के बारे में बात कर रहा है, किसी जगह के बारे में बात कर रहा है। लेकिन अगर इस वचन को हम ध्यान से पढ़े, ये वचन कहता है भवन, और भवन जहाँ पर भोजन वस्तु रही थी। भोजन वस्तु किसके बारे में? क्या कोई बैंक के बारे में बात कर रहा है, कोई जगह के बारे में बात कर रहा है? इसका वचन एक ही चीज को दर्शाता है कि ये कलीसिया के बारे में बात करता है, जहाँ पर हम जाते हैं या ऐसी जगह पर जाते हैं जहाँ से हमें भोजन मिलता है। And so I tell you, if you are a believer who has a relationship with the church for tithes, you will reestablish the blessing that you need. If you are a believer who is kind of having a hard time dealing with tithes, this is really important as well for you. और मैं आपसे कहता हूं कि खासकर वो विश्वासी जो परमेश्वर के साथ रिश्ता बना के रखा है, उसके वचन के मुताबिक अपना दशमांश देता है। और अगर आप ऐसे विश्वासी हैं कि जो अभी भी सोच रहे हैं कि क्या करना है इस चीज के बारे में, तो ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है। So when you believe the word that God has spoken in this verse, if you believe what the verse is saying is bring all the tithes, bring the full tithe into the storehouse. The Bible is telling you, God is telling you here, the reason that your church will be blessed is because of your tithes, all of your tithes. और इस वचन के मुताबिक जब परमेश्वर का वचन कह रहा है, जब परमेश्वर कह रहा है कि तुम सारे अपने दशमांश भंडार में लाओ, उस भवन में लाओ, जब तुम सारे अपने दशमांश लेकर भंडार में आओगे, तो आपकी कलीसिया आशीषित होगी। Did you hear that, church? Do I have to read it again? Did you hear it? क्या आपने ये सुना कलीसिया? क्या हम फिर से पढ़ें? If your church is sending out requests, we need money for so and so thing, we need money for so and so thing, we need to raise money for so and so thing, it means you are not faithful. और अगर आपकी कलीसिया बार-बार आपसे निवेदन कर रही है कि ये कारणवश हमें कलीसिया में आपके दशमांश चाहिए, ये कारणवश हमें कलीसिया में पैसे इकट्ठे करने, ये कारणवश आपको इस चीज के लिए मदद करना है कलीसिया को, और अगर बार-बार कलीसिया ऐसा कह रही है, इसका मतलब आप अपना कर्तव्य नहीं कर रहे, आप अपने दशमांश नहीं ला रहे। So bringing all your tithes to the church is the only way that your church will be blessed, that your church will be financially sound. There is no other way for your church to be financially sound other than you, the believers, your tithes, all your tithes, which means all the tithes means offerings, tithes, all our giving to God. We are the source
to financially secure our church. This is a practical teaching. और ये जो परमेश्वर हमें सिखा रहा है, ये सीधी सादी साधारण तरीका है और सबसे सही तरीका है जो परमेश्वर हमें बता रहा है कि आपकी कलीसिया तभी आर्थिक रीति से सही हो सकती है, उसकी आर्थिक स्थिति सही हो सकती है जब हम एक विश्वासी होने के नाते अपना कर्तव्य, अपने दशपांश, अपने दान अर्पण समय समय पर दें, और जिस समय हमें कहा जाता है कि हमें देना है तो हमें उस तरीके से, हम उस नियम के मुताबिक अगर देते रहें तो हमारी कलीसिया को आर्थिक रीति से कोई भी कमी ना होगी, और इसका कोई तरीका नहीं है। बिलीवरों, ये याद रखो कि ये आपकी जिम्मेदारी है. This is not a suggestion to you. This is a responsibility when you are a church member. और ये आपको हम सुझाव नहीं दे रहे कि आपको दशपांश या दान अर्पण देना है, हम आपको आपका कर्तव्य याद दिला रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी आपको याद दिला रहे हैं कि ये विश्वासी होने के नाते आपको तो करना ही है। And the reason you do it is because God has given this to you, first to be a blessing to the church, and second to bless you. और इसलिए आप ये करते हो, ये जो दशपांश लेकर आते हो परमेश्वर के भवन में, पहली चीज तो ये कि ये आप कलीसिया को आशीष देते हो, जो आशीष आपको मिला है, और दूसरी चीज ये कि वो आशीष आप ही के ऊपर आता है। But the problem that we have is that we do not believe that this is a spiritual source of blessings. लेकिन तकलीफ ये है कि हम ये विश्वास ही नहीं करते कि ये आत्मिक तरीका है हमें आशीष पाने का। We think that this is something which is a donation. और हम ये सोचते हैं कि हम ऐसा कोई दान कर रहे हैं। I really don't like the Hindi word. I've always heard that Hindi word which says dan. And I tell you, for me, dan, when I talk about in English, it means donation. और मैं हमेशा से इस वचन को पसंद नहीं करता हूं, लेकिन डोनेशन का जो हिंदी अनुवाद है उसे दान कहा जाता है, और मुझे ये वचन पसंद नहीं है। Because tithes is not a donation. क्योंकि जो दशपांश है वो दान नहीं है। The word donation is, I am doing something for you out of my money. और जो दान है वो ऐसा उसका अनुवाद है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कर रहा हूं, जो पैसे मेरे पास है उसमें से। मतलब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जो हिंदी शब्द है वो एक्चुअली गलत शब्द है, क्योंकि ना तो टाइट्स ना तो ऑफरिंग्स, वो वर्ड जो है वो दान में बैठता है। और ये ब्रदर एलन का गलती नहीं है, ये जो लोग ने जो बाइबल को ट्रांसलेट किया है ना, हिंदी बाइबल को, उन्होंने ये वर्ड डाला है, और ये वर्ड सब बिलीवर्स और सब चर्च यूज करता है। जब हम सोचता है donation, the moment we hear, and you can use the English word, Alan, for this when you're making the difference, the moment we hear the word donation, we think it's our money. और जब जब हम ये डोनेशन की बात करते हैं, हम देने की बात करते हैं, हम ये सोचते हैं कि अरे हमारा पैसा जा रहा है या हमारे पैसे में से कुछ जा रहा है। And the moment you have a relationship with your money, then it stops you from giving to God the way God wants you to give. और जिस समय आपका जो रिश्ता बन जाता है आपके पैसे के साथ, तो परमेश्वर के साथ आपका रिश्ता फीका पड़ना शुरू हो जाता है। But the special thing about tithes and offerings is it is money that belongs rightfully to the church. लेकिन जो खास तरीका है जो दशपांश है और जो भेंट है, कैन आई यूज द वर्ड भेंट फॉर ऑफरिंग है? Bait is gift, right? Yeah. I think you should just use the English words right now. तो जिस समय हम अपने टाइथ और ऑफरिंग परमेश्वर के घर में लाते हैं, the moment we give this to God, we got to realize this does not belong to us. This was God's in the first place. और जब हम परमेश्वर के घर में टाइथ और अपने दान और माफ कीजिएगा दान अपने टाइथ और अपने ऑफरिंग जब हम परमेश्वर के घर में लेकर आते हैं, तो हमें ये भूल जाना चाहिए कि वो हमारा था, वो तो परमेश्वर का था, हमने परमेश्वर को दे दिया। ऐसी सोच से हम आने चाहिए। So imagine this. Imagine that your dad or your mom, your parents are giving you 100 rupees. All right. I like to work in small numbers. 100 rupees. And they say, take this 100 rupees to the bank and put 20 rupees
into my bank account because I needed to deposit it, and 80 rupees you can put into your bank account. और मान लीजिए आपके माँ-बाप आपको कहें और आप ये लो 100 रुपए का नोट और ये 100 रुपए ले जाओ और उसमें से 20 रुपए तुम बैंक अकाउंट में डालो, मेरे अकाउंट में डालो और 80 रुपए तुम्हारे पास रखो। So there's two bank accounts. There is your parents' bank account and there's your bank account. Your parents have said 20 rupees goes into their account, means it's theirs, and 80 goes into yours because that's yours. और उसमें से यहाँ पर 2 बैंक अकाउंट है, एक है जो आपका है, जिसमें आपके माँ-बाप ने कहा है कि उसमें 80 रुपए डालो और एक आपके माँ-बाप का बैंक अकाउंट है, जिसमें वो कह रहे हैं उसमें वो 100 रुपए में से 20 रुपए उधर डालो, 80 तुम्हारे बैंक में डालो। This is what we as believers do not understand. और एक विश्वासी होने के नाते हम यही चीज़ को समझ नहीं पाते। Church of the Living Waters, this is what we don't understand. और चर्च ऑफ लिविंग वाटर्स कलीसिया यही चीज़ हम समझ नहीं पाते। Whenever you get a message from your church why you've not paid your tithe, you start thinking that the church is asking you for your money. और जब आपको कलीसिया से ऐसा संदेश आता है कि आपने अपना टाइथ और ऑफरिंग नहीं दिया है, तो उसी समय आप ये सोचने लगते हैं कि आपके पैसे की हम मांग कर रहे हैं। But the truth is, you're forgetting that this is the money that was already belonging to the church. और सच्चाई तो ये है और आप ये भूल जाते हैं ये पैसा तो पहले से ही कलीसिया उसकी हकदार थी, ये कलीसिया को जाना चाहिए। So the moment you forget that this is rightfully what God has said, God said this belongs to the church. और जिस समय आप ये भूल जाते हैं कि ये परमेश्वर ने कहा है और जब परमेश्वर ने कहा था इस तरीके से इसका नियम का पालन करो, वहां पर तकलीफ शुरू होती है। Are you getting me, church? This is where the problem is. The problem is we're thinking our entire salary belongs to us. और यहीं तो तकलीफ शुरू होती है कलीसिया, ये सारी तकलीफ की जड़ यहीं से शुरू होती है कि जब हम सोचते हैं कि हमारी की पूरी पगार, हमारा वेतन हमारा है। And because we think all of the money is ours, so we start spending our money and God's money to pay our bills. We are using God's money to pay our bills. That's not right. और उस समय फिर हम परमेश्वर का जो पैसा है हम उसका पैसा भी खर्च करना शुरू करते हैं और हमारा पैसा समझकर वो सारा पैसा खर्च करना शुरू करते हैं और उसमें से हम परमेश्वर का जो पैसा जो उसके हक का है उसको भी हम अपना इस्तेमाल करते हैं अपने बिल भरने के लिए। Are you understanding where the problem is? क्या आप समझ पा रहे हैं कि तकलीफ की जड़ कहाँ है? The problem is what is God's, you are forgetting it belongs to God's. Knowingly or unknowingly, you're forgetting it belongs to God's and you're using it to pay your own bills. और तकलीफ ये है कि आप समझ नहीं पा रहे या भूल जाते हैं या जानबूझकर भूल जाते हैं कि जो परमेश्वर का पैसा है आप खर्च कर रहे हैं। But the moment you understand the differentiation, then the moment you receive your salary without question, without thinking, without getting the message from the church, you separate what is God's. That is separated and given to the church first because it's your church, because you are part of the church, because it's your responsibility, and because God said you should do so. और जिस समय आप ये बिना किसी सोचे समझे एक विश्वासी होने के नाते अपनी जिम्मेदारी निभाते हैं, जैसे आपको आपका वेतन मिलता है, आपकी पगार मिलती है, आप उसी समय जो परमेश्वर का है परमेश्वर के लिए निकाल कर रख देते हैं बिना आपकी कलीसिया आपको फोन करे या आपको याद दिलाए कि आपको देना है। ये शुरुआत होनी चाहिए। And I tell you, church, if you as believers can understand this right in the beginning, you're not going to be telling us as a church that we are struggling with money, we do not have money, we whatever salary is coming in is going towards our bills. There's no logic in that. What your salary comes, it cannot go to the bills first, because what is rightfully God's, you need to give that to God's church first. और कलीसिया ये हमें समझना बहुत जरूरी है। जब कभी हमारा पैसा हमारे हाथ में आता है, माफ कीजिएगा, हमारा वेतन, हमारे पगार हमारे हाथ में आता है, उसी में से हमें पहले ही परमेश्वर का जो चीज है परमेश्वर को निकाल देना चाहिए। आप बाद में ये नहीं कह सकते कि हमारे पास तकलीफ है, हमारे पास तंगी है, हमारे को बिल भरना है। जैसे ही आपकी वेतन आपके पास आती है आप बिल भरना शुरू मत करें,
पहले परमेश्वर का जो है उसको दें। So, all husbands and wives, all parents and children, make a note of what has been said today. तो जितने भी पति पत्नियां हैं जो कि माँ बाप हैं, ये जो चीजें हमने आज कही हैं इसको आप नोट कर लें। This is what you need to do starting from this month. और ये आपको करना है इस महीने की शुरुआत से। Whatever is your source of income, आप जैसे भी जिस तरीके से भी आप अगर पैसा कमा रहे हैं, wherever you get your income in, and I tell you, we start to become so technical with God. हमारी तो सैलरी नहीं मिलता है, हमको तो पेंशन मिलता है, हमको तो सैलरी नहीं मिलता है, हमको तो डोनेशन मिलता है, हमको तो सैलरी नहीं मिलता है, हमको तो गिफ्ट मिलता है, हमको तो सैलरी नहीं मिलता है, कोई हमको सपोर्ट करता है. Whatever the money is, whatever money you receive which feeds you, that's your income. और ये तकनीकी जवाबों को आप ना शुरुआत करें, तकनीकी जवाबों में ना खेलें, तकनीकी शब्दों से आप ना खेलें कि हमारा पैसा ऐसा आता है, हमारा पैसा वैसा आता है, हमारा तक दान से आता है, ये आता है। जो वो सब चीज़ें आप ना करें। जिस तरीके से आपके पास कैसे भी तरीके से आपके पास पैसा आता है, जिससे आप खाना खाते, जिससे आप रोटी खाते, जब वो पैसा आपके पास आता है तो The money that comes to feed you, that's your income, in the most easiest way to explain. जो पैसा आपके पास आता है, जिससे आपकी रोज़ी-रोटी चलती, जिससे आपकी रोटी चलती है, वो आपकी इनकम है। When you receive that, you as a family must be responsible and say to one another, have you taken out the tithe and paid your tithe first? और एक परिवार होने के नाते, एक ज़िम्मेदार परिवार होने के नाते आपको एक-दूसरे से बात करनी चाहिए कि जैसे ही वो पैसा आपके हाथ में आता है, आप एक-दूसरे को याद दिलाना चाहिए, ज़िम्मेदार होना चाहिए कि क्या हमने वो टाइट्स निकाला है या नहीं। Do that, practice it, and I tell you, you'll see the blessing. और इसकी आप प्रक्रिया शुरू कर दें और फिर आप देखें परमेश्वर कैसे आपको आशीष देता है। Because the second half of this verse is so powerful. क्योंकि जिस वचन का दूसरा हिस्सा बहुत ही शक्तिशाली है। Do you know that the book of Deuteronomy, chapter 6 and verse 16, the Bible tells us not to test God. आपको पता है व्यवस्था विवरण की किताब 16वां अध्याय what's the chapter भाई? Deuteronomy 6 and 16. It's the Old Testament where the Bible tells us not to test God. और व्यवस्था विवरण में 6:16 में परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि हम यहोवा की हमारे परमेश्वर की परीक्षा ना लें। And then Jesus also echoes this verse in Luke chapter 4 and verse 12 and says, you cannot put God to the test. और यही चीज यीशु मसीह भी कहते हैं नए करार में लूका रचित सुसमाचार में 4 अध्याय 12वां वचन कि परमेश्वर की परीक्षा ना करो। But in the book of Malachi 3:10, God says, where tithes are concerned, you have a right to test me. लेकिन यही परमेश्वर का वचन मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10वां वचन कहता है जहां तक हमारे टाइट का सवाल है तुम परमेश्वर को परख कर देखो। Some people say, oh, what is this? How can God say one thing one way and then another thing another way? और बहुत से लोग ऐसे कहते हैं क्या परमेश्वर कभी यहाँ कुछ बोल रहा है वहां पर कुछ बोल रहा है, ऐसा कैसे हो सकता है? Because he's God. क्योंकि वो परमेश्वर है। Because he created everything. He owns everything. क्योंकि उसने सब कुछ बनाया है और सब चीज का निर्माता है, वो तो हर चीज का मालिक है। He has the rights. उसके पास हर चीज का हक है। And God has told us that you cannot test him. Don't ever test him because testing him means that you doubt him. और परमेश्वर ने हमें कहा है कि हम उसको परखें ना, उसकी परीक्षा ना लें, क्योंकि इसका ये मतलब होता है कि हम उसके ऊपर शक करते हैं। But in this verse, he says, look, you cannot test me about anything else. But whereas tithes are concerned, I give you a right to test me. और परमेश्वर ऐसा कहता है कि देखो तुम किसी चीज में मेरी परख नहीं ले सकते, किसी चीज में मेरी परीक्षा नहीं ले सकते, लेकिन जहां तक टाइथ और ऑफरिंग का है यहाँ पर तुम मेरी परीक्षा ले सकते हो। Now listen, church. आप ध्यान से सुनिए कलीसिया। This is the meaning of the test. और ये मतलब है उस परीक्षा का। The Bible tells me I can test him पवित्र शास्त्र कहता है कि मैं उसकी परीक्षा ले सकता हूँ regarding tithes. टाइथ के मुताबिक। What does that mean? उसका मतलब क्या है? Are you ready, church? क्या आप तैयार हैं कलीसिया?
testing God with tithes means this. परमेश्वर की परीक्षा लेना जहां तक टाइथ का सवाल है उसका मतलब ये है, My income is more than my bills are more than my income. और मेरे जो बिल हैं जो मैं कमाता हूं उससे कहीं ज्यादा हैं। My light bill, my water bill, my phone bill is, let's say, 500 rupees. और मेरा बिजली का खर्चा, मेरा पानी का खर्चा, मेरा फोन का खर्चा मान लीजिए, चलो उदाहरण के तौर पर 500 रुपया है। And my income is 400 rupees. और मैं जो कमाता हूं मान लीजिए वो 400 रुपया है। Are you with me, church? क्या आप मेरे साथ हैं कलीसिया? So my income is 100 rupees less than my bills. और मैं जो कमाता हूं वो 100 रुपया उसमें कमी है जितने मेरे बिल हैं। Now let's say your tithes is 100 rupees. और मान लीजिए आपका जो टाइथ है वो भी 100 रुपया है। So now out of that 400, you only have 300. तो अब वो 400 रुपए में से आपके पास सिर्फ 300 रुपए हाथ में है। So what does your mind say? Your mind says, look, my bill is already more than my income. So let me use all to at least pay off the 400. And the 100 rupees, I'll pray to God and ask God to give. तो आपका मन आपको क्या कहता है, अरे मेरे बिल तो पहले से ही 500 रुपए के बिल है, 500 रुपए तक मेरा बिल सब भर रहे हैं और मेरे पास 400 है, तो मैं पहले अपने बिल भर देता हूँ और 100 रुपए के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करूंगा जो और मुझे भरने हैं। Are you getting me, church? क्या आप समझ पा रहे हैं कलीसिया? Are you understanding what the word of God is telling you? क्या आप समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? This is what we do. ये हम करते हैं। We are keeping back what is the tithe because our bills are more. हम वो चीज अपने पास रखते हैं जो चीज टाइट है, क्योंकि हमको बिल भरने हैं, Because our bills are more than our income. क्योंकि हमारे बिल ज्यादा है जिससे हम जो हम कमाते हैं उससे कहीं ज्यादा है। And then what happens is the 100 rupees, so you pay the full 400 towards your bill, and now you have 100 rupees due to pay. और आप क्या करते हैं कि आप पूरे के पूरे 400 रुपए अदा कर देते हैं आपके बिल की तरफ, और आपके पास कुछ नहीं है और You have 100 रुपए nothing. आपके ऊपर, और You have nothing to use, but you have 100 rupees due more. आपके हाथ में तो कुछ नहीं, लेकिन आपको और भी 100 रुपए के बिल भरने हैं। And then you pray to God for that 100 rupees. और फिर आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जो 100 रुपए बचे हुए बिल में उसके लिए आप मांगते हो। Are you understanding where the problem is? क्या आप समझ पा रहे हैं कि तकलीफ कहाँ है? You're coming to God as a defaulter. You're coming to God asking Him for a miracle while you're still a defaulter. आप परमेश्वर की तरफ आते हो कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करे, लेकिन आपने परमेश्वर के नियम को ही पहले पालन नहीं किया। But what He's telling you is that even when your bills are more than your income, लेकिन वो आपको क्या कर रहा है, जब चाहे ये ऐसे भी हालात हो कि जब आपके बिल है आपके वेतन से कहीं ज्यादा हो तो भी He says, test me, meaning even in that situation, give what is God's. Give what is God's and test me. Because what he's telling you is that even though your income is less than your bills, when you give what is God, what belongs to God, I will take care of you. That's what this word means. और ये वचन के मुताबिक परमेश्वर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है कि हो सकता है आपका वेतन कम हो आपके बिल से और आपके बिल बहुत ज्यादा हो, ऐसे हालात में भी आप पहले परमेश्वर का जो है परमेश्वर कर दें और परमेश्वर को परखिए, परमेश्वर की परीक्षा ले, क्योंकि इस परमेश्वर जो है वो आपको वचन के मुताबिक ये कह रहा है कि ऐसे हालात में भी मैं तुमको आशीष दूंगा। So I tell you, if you really want to be blessed, this is what you need to start doing from today. और अगर आप सच में परमेश्वर का आशीष पाना चाहते हैं तो आज से आप ये शुरू कीजिए। Start testing God where your tithes are concerned. और परमेश्वर को परखें, परमेश्वर की परीक्षा लें जहां तक टाइथ और ऑफरिंग का सवाल है। Every time you receive your income, compare it with your blessing, and when your income is less, still give what belongs to God to the church, and you see how He will take care of the rest of your expenses.
और जब जब आपकी पूंजी आपके पास आती है, जो जब आपका वेतन आपके पास आता है, जब जब आपके पास आपका आशीष आपके पास आता है, जो परमेश्वर का है, परमेश्वर को देख के तो देखिए जो परमेश्वर कैसे आपको आशीष देता है। Now, let me tell you another secret about testing God. और मैं आपको और एक रहस्य बताता हूँ परमेश्वर की परख के बारे में। If God says test, means I got to test him. He's told me I can test him. अगर परमेश्वर कहता है मेरी परीक्षा लो और मुझे परखो, तो मैं उसको परखूंगा। He says, where tithes are concerned, test me. और वो कहता है जहां तक टाइथ का सवाल है मुझे परखो। What this means is, even if I have sufficient, even if my income is more than my bills, even if I have surplus, और अगर इस हो सकता है मेरा जो वेतन है मेरे बिल से कहीं ज्यादा भी हो, चाहे मेरे पास ज्यादा भी हो, तो भी मैं परमेश्वर को परख सकता हूँ। so if I have enough and if I have sufficient, if I have enough of money, if I have more than enough, if I have surplus with me, और अगर मेरे पास बहुत ज्यादा है, अगर मेरे पास जरूरत से ज्यादा है, और अगर मेरे पास काफी है, it means I can give more than my tithe. इसका ये मतलब है मैं अपने जो टाइथ देना है मैं उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। Where tithes are concerned, I can test him. और जहां तक टाइथ का सवाल है मैं उसकी परख ले सकता हूँ। So if every month you give 100 rupees tithes, तो अगर हर महीने आप 100 रुपए देते हैं अपने टाइथ की तरफ, this verse is telling you, try and pay 200 once and see how I'll bless you. That's the meaning of test me. तो इस वचन का वचन के मुताबिक अगर आप हो सकता है 100 रुपया हर महीने भरते हैं, तो वचन कहता है कि 200 देकर देखो और फिर परमेश्वर को परखो जहां तक आपके टाइथ का सवाल है। Try 1 month and give 300. और हो सके कोशिश करो, परखो और परीक्षा लो परमेश्वर की और 300 देकर देखो। Try 1 month and give all your income. Ooh, that'll need faith. और कोशिश करें कि एक महीने में तो आपकी जो पूरा वेतन है पूरा का पूरा वेतन परमेश्वर को तरफ दे दो, उसमें तो आपका विश्वास परखा जाएगा। Test me and see what I will do. That is this verse. That is Malachi 3:10. और परमेश्वर कहता है मुझे परखो, मेरी परीक्षा लो, मुझे परखो, मेरी परीक्षा लो। ये है वो वचन मलाकी की पुस्तक 3 अध्याय 10वां वचन। If you've been listening to this teaching today, अगर आप इस शिक्षा को सुनते आ रहे हैं आज, there's no more excuses. इसके बाद कोई बहाना नहीं चलेगा। No more excuses. कोई भी बहाना नहीं चलेगा। God's word has been given to you. परमेश्वर का वचन आपको दिया गया है। We are not a church that says, if you want me to pray for you, pay me money. हम वैसी कलीसिया नहीं है, हम आपको ये नहीं कहते कि जब अगर आप हमसे प्रार्थना चाहते हो तो हमें पैसा दो। We are not a church that says, if you want blessing and if you want me, the man of God, to pray for you, send me this much money to my bank account. We are not such a church. हम ऐसी कलीसिया नहीं है कि हम आपसे कहते हैं कि अगर आप चाहते हो कि मैं आपके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करूं तो मेरे बैंक अकाउंट में इतना पैसा डालो। हम ऐसी कलीसिया नहीं है। But we are definitely that kind of church which follows the word which God has given us. And this is the word regarding your tithes and your offerings, which God says belongs to the church. लेकिन हम इस ऐसी कलीसिया जरूर हैं जो परमेश्वर के वचन के मुताबिक चलते हैं, और खास कर ये वचन जो परमेश्वर ने आज दिया है जहां तक टाइथ और ऑफरिंग का सवाल है। God bless you. I believe that you have heard the word. I believe that this word has blessed you. Start testing God. Start testing Him with your tithes from now, right now, and see the blessing God's going to do. और मैं ये विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको आशीष दिया है आज के वचन से, और परमेश्वर की परख करना शुरू कर दीजिए सिर्फ टाइथ और ऑफरिंग के मुताबिक। I look forward to see you all on Tuesday and on Wednesday, and I look forward to hear some testimonies of how God is blessing you. और हम आशा करते हैं हम आपसे मिलेंगे मंगलवार के दिन और बुधवार के दिन, और हम इस चीज की भी आशा करते हैं कि बड़ी बड़ी गवाहियां आएंगी इस वचन के बाद। Thank you for joining in for our church. God bless you, and we'll see you next time. और धन्यवाद, आप हमारी सभा में शामिल हुए। परमेश्वर आपको आशीष दे।